Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology, debunking mythology. Sathology means science or truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Now, our whole endeavor is to bring the best stories with facts, and I know you love our stories on Ramayana footprints and Mahabharata footprints. So today I have a very, very special guest. And the position with which he retired is already being questioned by the current naval chief to remove the colonization from the Navy. But let us welcome Senior Officer, Petty Officer, Sri Manan Bhatt. Thank you. It's great to be here. Hello, everyone. Petty Officer Manan Bhatt here. Our rank, as Aditya ji said, is too much colonized, but I take so much pride. I wear my rank with utmost pride and honor. I have served with utmost pride and honor. So it may be colonial, but it is subtly Indian in a way that the rank has remained with the petty officers, chief petty officers, and master chief petty officers of Indian Navy since the day India got liberated, since the day we got our independence. So, but definitely, if some positives are to be taken, if some changes are to be made in the services, these are all for the good. And Indian Navy, I must say, that is a service that has took colonization by horn. Let me tell you, when I joined the Navy, there was a practice of massmen. The junior sailors used to serve senior sailors in their mess in the dining hall. But over a period of time, when I went back to to the ship after my serving in New Delhi, I saw that the colonial practice was long gone, and we had civilian bearers serving the senior sailors. So Indian Navy has been known for changing its colonial practices for good. Indian Navy is one service that extends uh, a very professional behavior, very professional approach towards its sailors, and not treating them in a maligned colonial ways, which earlier sailors of the Royal Indian Navy used to be treated. Indian Navy has come a long way from being a RIN, from the days of RIN to the modern builders navy that we are today. It could not have been possible without the commanders who have led very in a way that the navy has reached this place, and not possible also without the junior sailors and senior sailors, the petty officers, chiefs, and the master chiefs who have gave their entire youth for the service of the nation. For the first time, when I went to the USS Fitzgerald, and it's an Arleigh Burke class carrier. I was like part of the show. I went there. For the first time, I saw in the rooms the titles of petty officers, senior petty officers. And then I realized how important that position is for the ship. And they virtually run the entire ship, other than the commander. Like many officers are there. The fighting sailors are different over there. So I saw it for the first time. And also when the Indian Navy ship was visiting San Diego, then also I saw that. So I know where to put, because earlier I used to get confused in the titles. Now coming to one question here. Now we have seen that and you can reply in Hindi. मैं हिंदी में पूछ सकता हूँ कि यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है इतने लंबे समय से चल रहा है, 10 महीने से चल रहा है, लेकिन रशिया का जो ताकत है बढ़ता ही जा रहा है, इसे कम नहीं हो रहा है. तो एक लोग मीडिया का कैंपेन है, अमेरिकन मीडिया का कैंपेन है, इंडियन मीडिया विच फॉलोज अमेरिकन मीडिया उसका कैंपेन है, वेस्टर्न मीडिया का कैंपेन है कि रशिया इज लूजिंग द वॉर. लेकिन ऑन द ग्राउंड ऐसा नहीं है. रशियन कैजुअलिटीज आर वेरी मिनिमल और यूक्रेन का कैजुअलिटीज आर वेरी हाई, जो कि आई डोंट सपोर्ट वॉर इन द फर्स्ट प्लेस. लेकिन एक देखते हैं कि इतने लंबे समय कॉन्फ्लिक्ट रशिया मेंटेन किया हुआ है
और यूक्रेन वॉज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्म फोर्स, नॉट ए स्मॉल फोर्स. On paper, it was the one of the strongest or biggest forces of Europe. On paper. So, what is the lessons which like can मतलब भारतीय सेना या नेवी, भारतीय मैं सेना की बात कर रहा हूँ तो सभी सेना के उसमें आ गए, अंग आ गए, क्या इतने लंबे समय का कांटेक्ट, इतने लंबे समय का कांटेक्ट रख सकती है वॉर में? आदित्य जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और शायद आपके और मेरे नहीं, बट हम सभी के मन में, शायद सभी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि रशिया इतने वर्षों से इतने महीनों से इस कन्फ्लिक्ट को कैसे सस्टेन कर रहा है। तो अगर आज की पोजीशन एज ऑन, अगर इस वीक की, इस हफ्ते की अगर रशिया की पोजीशन देखें, तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि उनकी कंट्रोल में आ चुके थे, और उसमें से वापस वो इलाके दनीप्रो रिवर के उस नॉर्थ के जो इलाके हैं, कई सारे इलाके हैं वो की जो कि प्रोग्रेसिवली रशिया ने लूज किए हैं। रशिया का जो इस जो ये जो सैन्य अभियान था, उसका उनका जो टारगेट था कि खेरासोन और ये कुछ 4 रीजन्स थे, लुहांस, डोनेस्क और खेरासोन, ये उन्हें मुक्त कराना चाहते थे। ये कह रहे थे कि हम उन्हें इन रीजन्स को फ्रीडम देना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे प्रो रशियन लोग रहते हैं, वहां पे ऐसे लोग रहते हैं जो कि रशियन हैं, जो कि यूक्रेन के साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो एक एक कहते हैं ना कि एक ऐसा व्यू लिया गया था कि जैसे अमेरिका लेता है, और जब अफगानिस्तान जाता है तो उसे ऑपरेशन अफगानी फ्रीडम कहता है, तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराक ऑपरेशन को कहा गया। तो ऐसा थोड़ा बहुत व्यू लिया गया था, और काफी इस बारे में बात भी हुई। मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले ये डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा कि मेरे जो व्यूज है वो मेरे पर्सनल व्यूज है, ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के व्यूज नहीं है। ये दिस इज व्हाट मैं पर्सनली जो जो देख रहा हूँ और जो एनालाइज कर रहा हूँ, ये मुझे जो लग रहा है वो मैं कह रहा हूँ कि अभी आज की पोजीशन देखें तो बैकफुट करके जो एरिया है, और सेवरस करके जो एरिया है, वहां पे लड़ाइयां चल रही हैं, और यूक्रेन कह रहा है कि दे हैव रीगेन दी रशियन पोजीशंस, दे आर एबल टू रन डाउन दी रशियंस। दूसरा, अभी तक जो फेमस यूक्रेनियन विंटर है, विंटर विच थ्रू बैक हिटलर फ्रॉम हिज फीट, और कहाँ वो बंदा पूरे वर्ल्ड को रूल करने जा रहा था, वहीं यही इसी यूक्रेन में, जो कि पूर्व सोवियत रशिया था, यहीं पे हिटलर हारा था। तो वो फेमस, इनफेमस कहें या फेमस कहें, वो विंटर धीरे धीरे सेट इन हो रहा है, और उस परिस्थिति में रशिया, क्योंकि रशिया तो उसी उसी इलाके का रहने वाला है, तो शायद वो किस तरह वॉर सस्टेन करेगा, उस वॉर एफर्ट को सस्टेन करेगा, ये बड़ी देखने वाली चीज होगी। ये थोड़ा मोटा मोटा टेक्निकल मैंने बताया। अब जाता हूं इस युद्ध की एक मूल जो जो विचार जो रशिया ने लिया, जिसके बारे में हमेशा से बात होनी चाहिए, कि अगर कोई युद्ध की बात आती है तो मैं कंपैरिजन ड्रॉ करता हूं कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध लड़ा 1971 में, आज से 51 साल पहले, और उस युद्ध में भारत ने 13 दिनों के अंदर अंदर पश्चिम, उत्तर और पूर्व, ये 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ा, और बांग्लादेश को 13 दिनों के अंदर अंदर एज ए कंट्री उसको मुक्त किया, फ्रीडम दिलवाया। अब यहां भी रशिया कुछ ऐसा ही एम लेके चल रहा है। रशिया तो कह तो यही रहा है कि वो फ्रीडम दिलाना चाहते हैं उन लोगों को, बट ग्राउंड पे जो हो रहा है, ग्राउंड पे जिस तरह की परिस्थितियां 10 महीने बाद देखने को मिल रही है, कहीं कोई ऐसा रशियन फ्लैग को वेव करते हुए लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं। कोई ऐसा, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से जब बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ, तो मुक्ति योद्धा को हमने ट्रेन किया, उन्हें उन्हें क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी, उन्हें उन्हें वॉर की ट्रेनिंग दी, कई महीनों तक ये चला, और उसमें उसके उनके साथ मिलके, उन मुक्ति योद्धा के साथ मिलके एक 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 खुद अग्रेसर रह के भारत ने उस युद्ध को जीत के दिया बांग्लादेश को, और एक नए कंट्री का निर्माण हुआ सिर्फ 13 दिनों में। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था, और
कई बांग्लादेशियों की कत्लेआम की, खास करके बंगाली हिंदुओं की बहुत बुरी तरह कत्लेआम हुई। और याहिया खान, टिक्का खान, इन लोगों ने मिलके जिस तरह से बंगालियों के पे ऊपर उस समय जो कि पूर्व पाकिस्तान था उनके ऊपर जो अत्याचार किए, उसके बारे में अभी भी ऐसा है कि बांग्लादेश के कोर्ट्स में कई सारे केसेस चल रहे हैं और लोगों को अभी भी उनको सजा दिलवाने की कोशिशें हो रही है। तो ये ऑपरेशन सर्चलाइट और ये सब चीजें, दीज ऑल आर वेल नोन। और ऐसे समय में वेस्ट लुक्ड अदर वे, भारत के विरुद्ध भी थे, और फिर भी भारत गया और हर एक मौके पे जहां जहां बंगाल में भारत की सेना गई, नौसेना गई, या इवन एयरफोर्स से जो एयर ड्रॉप्स हुए, उन्हें व्हाइट फ्लैग से उन्हें उन्हें उनका वेलकम हुआ है भारत के सैनिकों का। और क्या, चूंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान, जो जो पश्चिम पाकिस्तान के जो पंजाबी मुस्लिम लोग हैं वो बंगाल के ऊपर राज ना करें और वो वहां से जाए। उसका बैकड्रॉप भी हम सभी जानते हैं कि किस तरह से 1971 में, 1970 में किस तरह से शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान का इलेक्शन, क्योंकि पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान तब एक होते थे, और पूर्व पाकिस्तान की सीटें पश्चिम से ज्यादा थी, क्योंकि वहां पे जो जो उनकी जो जनसंख्या थी वो ज्यादा थी, तो उन्होंने वो इलेक्शन जीता और 157 उनकी असेंबली में, जनरल असेंबली में सीट आई। फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, उन्हें उन्हें उस सीट पे बैठने नहीं दिया गया। और उनका जो मिलिट्री जनरल था, जनरल याहिया खान, उसने इन्हें जेल में डाल दिया। 25 आई थिंक 25 मार्च 1971 के दिन, 26 मार्च को शेख उन्हें 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 हाउस अरेस्ट में डाल दिया 25 मार्च को। और 26 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान ने एक एक इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश की अनाउंसमेंट कर दी। अब यहाँ पुतिन साहब पे वापस आते हैं। ये 51 साल पुरानी बात है कि फिर उनको ये हुआ, उसके बाद में और पाकिस्तान के अत्याचार बंगालियों पे बढ़े। उन अत्याचारों से बचने के लिए जो खासकर पाकिस्तानी जो जो बंगाली हिंदू थे, और जो बंगाली थे, वो 10 लाख से ज्यादा लोग भारत में शरणार्थी बन के आए। उन्हें उन्हें फीड करना और ये सब, भारत को उन्हें सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो भारत के लिए इस ह्यूमन राइट्स का, अपने नेबर को इस मानवाधिकार जो क्राइसिस हो रहे थे, ह्यूमन राइट्स क्राइसिस हो रहे थे, उसमें से निकालने के लिए भारत के पास कोई विकल्प नहीं बचा। तब भारत ने इस युद्ध में कूदने का निर्णय किया। और फिर भी हुआ ये कि भारत कुछ करे, भारत इंटरवीन तो कर रहा था, बट भारत मिलिटरी इंटरवीन करे उससे पहले ही 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया। और उसके जवाब में हम शाम को ही, उसी दिन की शाम को हम जवाबी हमला करने वाले थे। पश्चिम भारत के कई हवाई अड्डों पे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला किया। उसके जवाब में, ये रिलेवेंट है क्योंकि मैं पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूं और पैरेलल ड्रॉ कर पा रहा हूं, ये यूक्रेन युद्ध और भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध के दोनों में, इसलिए थोड़ा सा आगे जा रहा हूं कि उस पश्चिम हमले के रात के अंधेरे में हम हमला नहीं करना चाहते थे। इसलिए अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock जिसे जब हमला करने का निर्णय लिया गया, और 4 फरवरी को भारतीय नौसेना ने पहला हमला 4 फरवरी के दिन पाकिस्तान के कराची हार्बर पे किया। उनके 3 से 4 शिप डुबा दिए। कराची हार्बर का जो कैमरी एयर ऑयल फील्ड था, वो उस पे 2 मिसाइलें दाग दी। और एज दे से कि रेस्ट इज हिस्ट्री, पश्चिम का जो युद्ध था वो 4 दिसंबर का हमला, जिसे कि ऑपरेशन ट्राइडेंट कहा जाता है। 8 दिसंबर को एक और हमला हुआ, उसमें भी उनके कई जहाज हमने मार गिराए, कई कई उनके नौसैनिक मारे गए। और कैमरी एयरफील्ड पे फिर मिसाइलें दागी गई, जो कि वहां पे जो आग लगी थी, कहते हैं कि अमेरिकन जो उपग्रह थे, जो सैटेलाइट्स थे, उन्होंने उनको वो फायर, वो आग आकाश से दिखाई दी। कहते हैं कि पश्चिम एशिया का, ये शायद साउथ एशिया का ये सबसे बड़ा एक ब्लेज था, एक अगन ज्वाला ऐसी थी जो कि अवकाश से दिखाई दे रही थी। तो इस तरह पश्चिम का युद्ध जो है 3-4 दिन के नेवल ऑपरेशंस में खत्म हो गया। उस तरफ पूर्व के युद्ध में हमारे जो जनरल थे, जनरल जैकब, जो कि स्टाफ ऑफिसर थे वहां पे, जनरल स्टाफ ऑफिसर, उन्होंने सेना को प्राइमरीली तो यही आदेश दिया गया था कि आप बड़े जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं उनके ऊपर हमला करें और उन्हें वहां से पाकिस्तानी सेना का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसे हटाने की
कोशिश करे। तो ऑल इन ऑल आप एग्री होंगे कि ये युद्ध, ऑल इन ऑल ये हो रहा था कि ये युद्ध एक तरह से कहते हैं ना कि स्ट्रीट वॉरफेयर और अर्बन वॉरफेयर, सॉरी अर्बन वॉरफेयर कहूंगा, उसमें कन्वर्ट होने वाला था, और ये लड़ाई काफी लंबी चलने वाली थी। इन परिस्थितियों में जो जीओसीज थे वहां पे, चाहे अरोड़ा साहब हो चाहे जेकब साहब हो, उन्होंने निर्णय लिया कि उनका जो सत्ता का जो केंद्र है वो ढाका था, और ढाका पे अगर हमला कर दिया जाए तो शायद हम पाकिस्तान का सरेंडर, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यूएन में जा रहा था उनके, और उन पाकिस्तान के समर्थक खासकर अमेरिका और स्वीडन जैसे देश लगातार यूएन में जा रहे थे और वीटो लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको कि यूएन में रिजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें कि युद्ध विराम की घोषणा हो जाए, और फिर भारत आगे नहीं बढ़ पाता, बांग्लादेश की शायद मुक्ति पॉसिबल ही नहीं थी। ऐसे समय में रशिया एक मित्र देश भारत के काम आया, और उस वजह से उन्होंने इस दो बार लगातार, एक बार अमेरिका एक बार स्वीडन के जो युद्ध विराम के जो प्रस्ताव थे उन्हें यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किए, और उस दौरान भारत को बताते भी गए कि अब हम ज्यादा देर तक वीटो नहीं कर पाएंगे, इंटरनेशनल प्रेशर ज्यादा है, आपको युद्ध जल्दी खत्म करना पड़ेगा। आप सोचिए, अगर भारत जिस तरह रशिया अभी अर्बन सेंटर्स में युद्ध लड़ रहा है, लगातार लड़ रहा है, पिछले 10-11 महीने से लड़ रहा है, अगर भारत यही करता तो शायद वो युद्ध पता नहीं कितने वर्ष तक चलता। बट भारत ने ये नहीं किया। भारत की सेना ने, भारत के जनरल्स ने कहा कि हम इनके जो सत्ता का केंद्र है, जो पावर सेंटर है, वहां हमला करते हैं। उन्होंने डेक्का की जो 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 असेंबली जहां बैठती थी, उनका जो ढाका का गवर्नर जहां बैठता था, पहले उस बिल्डिंग पे हवाई हमला किया गया एयरफोर्स के विमानों के द्वारा, जिससे कि जबकि उनकी जो कैबिनेट की मीटिंग वहां चल रही थी और ये डिस्कशन हो रहा था कि वॉर के बारे में, तभी हमला किया गया। हमारे पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस था कि इनकी मीटिंग वहां चल रही है। उस बिल्डिंग पे हमले के बाद उनका जो गवर्नर था वो रिजाइन करके वहां से भाग चुका था, और पूरी परिस्थिति जो थी वो जनरल नियाजी के ऊपर पूरा का पूरा भार युद्ध का आ चुका था। उस दौरान जनरल जैकब बिना एक भी वेपन लिए ढाका की स्ट्रीट से अपनी गाड़ी चला के आए और नियाजी से मिले। नियाजी को उन्होंने कहा कि भारत की सेना, भारत के 2 लाख सैनिक ढाका की बॉर्डर पे खड़े हैं, अगर तुम, और दूसरा कि आप ये शब्द सुनने वाला है कि पूरी की पूरी जो 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 बंगाली जो सेना है, वो सारे के सारे तुम्हारे खून के प्यासे हैं, या तो तुम सरेंडर कर दो या तो हम तुम्हें मुक्ति बाहिनी के हाथों सौंप देंगे। इस परिस्थिति में प्रेशर में आके नियाजी ने सरेंडर किया, और वो एक कहता ना कि द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। नियाजी के साथ विश्व के इतिहास में शायद इतना बड़ा कभी सरेंडर नहीं हुआ। 93,000 विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा सरेंडर भारत ने अचीव किया। पाकिस्तान के 93,000 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किए, अपने आर्म्स पुट डाउन किए, और युद्ध वहीं खत्म हुआ। ये सिर्फ 13 दिन में एक ब्लिट्जक्रिग ऑपरेशन हम अचीव कर पाए, जबकि वो समय था 1971 का। ना ही भारत के पास कोई ऐसा सैटेलाइट सपोर्ट था, ना ही हम काफी, हमारे जो वेपन्स थे वो भी, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रिमिटिव थे, बट काफी पहले के समय के थे। फिर भी हमने ये युद्ध विजय अचीव किया। जब अब आते हैं रशिया के ऊपर, तो अभी की अगर रशिया की परिस्थिति देखें तो रशिया 10-11 महीने से यही स्ट्रगल करता जा रहा है। उनका लिबरेशन जिसकी बात कर रहे हैं, तो लिबरेट तो आप उसको करेंगे जो लोग, लिबरेट कोई जमीन का टुकड़े नहीं होते। लिबरेट, यूक्रेन इज नॉट अ कंट्री, यूक्रेन इज इट्स पीपल। कोई भी देश, भारत क्या है, भारतवर्ष कोई जमीन का टुकड़ा थोड़ी है। ये भारत के लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, और जो इतनी सदियों से भारतवर्ष की जो संस्कृति है, और इसे सस्टेन हम कर रहे हैं। हम भारत के लोग ही भारत है, भारत कोई जमीन का टुकड़ा तो है नहीं। तो उसी तरह यूक्रेन इज नॉट अ पीस ऑफ लैंड। तो पीस ऑफ, आप जमीन के एक आध टुकड़े को लिबरेट कर सकते हैं, वो टुकड़े पे अपना नाम लिख सकते हो, वो तो आप पैसा देके परचेज भी कर सकते हो, एक प्लॉट। बट यूक्रेन कोई प्लॉट नहीं है, ये एक लोगों का एक आत्मविश्वास है, यूक्रेन के लोगों की एक 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 इच्छाओं से जुड़ा हुआ एक देश है। और उस देश पे कब्जा करना, अगर अगर लोग इतना ही रशिया को चाहते, लोग इतने ही प्रो रशियन होते, तो अभी तक तो रशिया जो चाहता था वो मुल्क अभी तक उस यूक्रेन का वो भाग अभी तक लिबरेट हो चुका होता। ऐसा है नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि
अब इस परिस्थिति में रशिया को खुद ही नहीं पता है, और दूसरा मुझे ये लग रहा है, पर्सनली मेरा ये मानना है कि एक ऑटोक्रेटिक लीडर जो कि मिस्टर पुतिन है, उनकी जो हाई लेवल की मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग है, जो कि सीनियर जनरल्स के पास होती है, वो काफी लिमिटेड है। और उनकी ऑर्डर्स पे चलते हुए जो जनरल लोग हैं, जो जो रशियन जनरल्स हैं, उन्हें हायर और फायर की उनको डर लग रहा है। उन्हें उस लगातार उस प्रेशर में वो नौकरी पेशा लोगों की तरह पेश आ रहे हैं, एंड एज जैसे कि बॉस जो कह रहा है, बॉस इज ऑलवेज राइट, उस तरह फंक्शन कर रहे हैं। इस समय में मुझे याद आता है जनरल जैकब जिन्होंने की हायर अथॉरिटीज को बोल दिया था कि मैं दिसंबर तक युद्ध करने को तैयार नहीं हूं। इस समय जब बोला गया कि हायर अथॉरिटीज से जब ऐसा आया, पॉलिटिकल अथॉरिटीज से जब ऐसा आया कि आप मार्च जून जुलाई में हमला कीजिए, उन्होंने कहा बांग्लादेश, एंटायर बांग्लादेश विल बी स्वैम्पी, और इस समय हम युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, हम जाएंगे इसमें तो निकल नहीं पाएंगे। जैसे कि वियतनाम जब स्वैम्पी था और अमेरिका घुसा था, और क्या परिस्थिति उनके साथ हुई थी। तो बांग्लादेश विल बी ऑलमोस्ट लाइक वियतनाम, और इंडिया का वियतनाम बन के रह जाता। तो उन्होंने दे होल्ड इट अप, और दिसंबर तक यही जनरल फील्ड मार्शल जनरल साम मानेकशॉ ने भी यही कहा कि हम इस समय युद्ध नहीं लड़ सकते। उन्होंने अपनी जो जो कमांड थी, ईस्टर्न कमांड थी, उनकी उनकी ही जो जो इच्छाएं थी, उनको आगे पेश किया और कहा कि हम इस परिस्थितियों में युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम दिसंबर में लड़ेंगे। और इवेंचुअली उन्होंने युद्ध जीत के भी दिखाया। तो अगर आपको एक टास्क, बीट इन अ कंपनी भी, अगर आप अपने मैनेजमेंट को कोई टास्क देते हैं, कंपनी के आप ओनर हैं, तो या फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, तो आप अपने मैनेजमेंट को टास्क देते हो, जब आप अपने सीएमडी को कोई टास्क देते हो, तो यू गिव हिम टाइम एंड स्पेस। उसकी जगह अगर जिस तरह पुतिन साहब कर रहे हैं, जो कि अभी ऑब्वियसली दिख रहा है कि वो अपनी विल एंड विश, या उनकी जो एम्बिशंस हैं, उसको समवॉट मिलिट्री के ऊपर थोप रहे हैं। और जिस वजह से एक प्रोफेशनल मिलिट्री बीइंग, रशियन मिलिट्री बीइंग थोरोली प्रोफेशनल वन, हमने फॉर्चुनेटली मैंने उनके साथ काम भी किया है, और मैं जानता हूं कि रशियंस कितने ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं, उनके वेपन सिस्टम्स हो और उनकी जो मिलिट्री प्रैक्टिसेस हो, वो वर्ल्ड में शायद वन ऑफ द बेस्ट है। अगर वो 10 महीने से विक्ट्री नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो आगे लगता नहीं है कि आगे, क्योंकि अब फेस सेविंग भी कुछ एक होता है ना, कि फेस सेविंग विक्ट्री की, चलो थोड़ा बहुत मिला, आप वापस आ गए। अब वो भी मुझे लग रहा है कि काफी मुश्किल परिस्थिति निर्माण हो रही है, और पुतिन साहब ने अपने आप को आगे करके रखा है, और सारे डिसीजंस वो ले रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट, अगर जनरल्स को टाइम और स्पेस दिया जाता, तो जनरल्स शायद डिस्कशन करते, और कितनी विक्ट्री चाहिए और कितनी विक्ट्री अचीवेबल है और वायबल है, ये शायद डिस्कशन होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूक्रेन का पावर सेंटर है, जो उनके प्रेसिडेंट है, अनफॉर्चुनेटली, अगर इट इज टू लेट नाउ, बट उनपे इनिशियली अगर हमला करने का आपका इरादा था, तो आप पावर सेंटर्स पे, उनके उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पे हमला करते, उनके प्रेसिडेंशियल पैलेसेस पे हमला कर देते, और उसको आप शायद तोड़ सकते थे यूक्रेन को। बट अभी युद्ध की परिस्थितियां देख के लग रहा है कि एक तरफ जेलेंस्की इज वेरी सेफ, और दूसरा कि अंडर हिज लीडरशिप द एंटायर कंट्री इज स्टैंडिंग अप टू रशियन अग्रेशन, और शायद हर एक यूक्रेनियन जो यूक्रेन में रह रहा है, वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगा और रशिया को फाइट देगा। दूसरी तरफ रशिया में जो जो जिस तरह से जबरदस्ती आर्मी में लोगों को रिक्रूट करने की बात आ रही है, और लोग वहां से एस्केप कर रहे हैं, वो चीजें काफी चिंताजनक है। और इस तरह वॉर एफर्ट को सस्टेन करना, इवन दो रशिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिलिट्री, उनका जो मिलिट्री प्रोडक्शन हाउस है, या उनका जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, सिविलियन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स मैं कहूंगा, विच इट इज वन ऑफ दी वर्ल्ड्स बिगेस्ट, उनको शायद अभी के परिस्थिति में शायद चाइना ही उनसे ज्यादा प्रोडक्शन करता होगा वेपन्स एंड एम्यूनिशन का। फिर भी उनके लिए इस वॉर को सस्टेन करना, मेरा ये पर्सनली मानना है कि वो दिन दिन ब दिन डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज अब यू डोंट गेट अ ट्रेन्ड और मोटिवेटेड सोल्जर इन अ डे। आप ऐसे जबरदस्ती भर्ती करके आप ट्रेन्ड और मोटिवेटेड सोल्जर को आप पैदा नहीं कर सकते। आपने जो लॉसेस, खास करके अगर वैसे कहा तो ये जा रहा है कि यूक्रेन लॉसेस आर वेरी मेजर। ऑब्वियस है कि जब मिसाइल स्ट्राइक्स होती है तो लॉसेस बड़े होते हैं, बट अब यूक्रेनियन फोर्सेस वो छोटे छोटे पॉकेट्स में 10, 15, 20 ऐसे पॉकेट्स में खुद को सस्टेन कर रहे हैं। वो लोग इस तरह फाइट दे रहे हैं कि
कहीं बड़ा टारगेट मिसाइलों के लिए वो रशिया को पेश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब जब एक मैं कहूंगा कि अर्बन वॉरफेयर की जब बात आती है, तो अग्रेसर जो होता है वो 1:5 में, मैंने पहले भी कहा कि 1:5 में लॉसेस लेता है। तो रशिया क्या, ये बड़ा सवाल है कि क्या रशिया एक यूक्रेनियन सैनिक के सामने 5 अपने सैनिक खो रहा है। बट वही है कि फॉग ऑफ वॉर में काफी चीजें बाहर नहीं आती। बट जिस तरह से वॉर ड्रैग ऑन कर रहा है, जिस तरह से ड्रैग कर रहा है, लंबा जा रहा है, उस तरह से ये तो पक्का है कि अग्रेसर के पास परिस्थितियां अग्रेसर के लिए काफी मुश्किल हुए जा रही है। अनफॉर्चुनेट है कि यूक्रेन ब्रेव फेस पुटअप तो कर रहा है, बट यूक्रेन के लिए यहाँ से मैं कहूंगा कि ये इस युद्ध में शायद किसी की जीत इस परिस्थिति में तो हो नहीं सकती। यूक्रेन के लिए जो भी है, उनकी जमीन है, उनका उनका देश है। तो अगर रशिया वापस चला जाता है तो उसके लिए भी फेस सेविंग लेट तो लेट हो ही जाएगा। दूसरा, यूक्रेन के लोगों का जो जो एस्पिरेशंस है, जो फ्रीडम है, वो भी ऑनर हो जाएगा। बट कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। एक्चुअली अगर हम वेस्टर्न मीडिया को देखें तो वेस्टर्न मीडिया शुरू से बोल रही है कि यूक्रेन जीत रहा है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ये नहीं बता रही है कि 115 बिलियन डॉलर उसके अंदर डाले गए हैं। अमेरिकन, ब्रिटिश, ये सब जो सीक्रेट सर्विसेज है, कमांडोज हैं, उनके वर्क कर रहे हैं अंदर। एसएएस, ब्रिटिश एसएएस है, अमेरिकन सील्स हैं, वहां पे काम कर रहे हैं। और कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि 6,000 पुलिस सोल्जर्स मारे गए, वो भी न्यूज आई थी बाहर। और अमेरिका में बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, कर्नल मैकग्रेगर, जेफरी सैक है, ये सब लोग जो है बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इस वॉर को। और जितने भी वेपन्स भेजे गए, जब भी आप समझ सकते हैं कि जितने 20 साल में अफगानिस्तान में वेपन्स अमेरिका छोड़ के आया, उसके दुगने वैल्यू के वेपन्स भेजे गए हैं। और करीब उसके दुगने नंबर के जो टैंक्स भेजे गए वहां पर। तो 6,500 टैंक्स रशिया ने मारे हैं, ऑफिशियली ऐसा बोला जाता है, जो कि क्लेम है। और काउंट भी कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि रशियंस का जो भी वेस्टर्न जो आइडिया था कि रशियंस आर वेरी बैकवर्ड, वो सब डिस्पेल हो गया है। कि सारे सैटेलाइट कंट्रोल वेपन्स हैं, और जितनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स रशिया ने यूज की है, उतनी न अमेरिका के पास है, न पूरे यूरोप के पास भी नहीं है। शायद चाइना के पास हो, शायद, अगर उसने बनाया है तो, है ना। इंडिया के पास तो डेफिनेटली हाइपरसोनिक नहीं है। तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आई है कि इतना फोर्टिफाइड। इसका मतलब ये है कि 2014 से यूक्रेन वॉज प्रिपेयरिंग, 2014 से। तो इतना फोर्टिफाइड एनवायरनमेंट में जो युद्ध हो रहा है, उसके उसमें मतलब जो भी उनका जो तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरह की परिस्थिति भारतीय सेनाओं के सामने आ जाए आज के समय, तब भारतीय सेना कैसे रिएक्ट करेगी इसके लिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसमें, इस क्वेश्चन में मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की सारी, इस क्वेश्चन के आंसर में पाकिस्तान की जो पूरी पोल है, आई एम सॉरी, वो खुलने वाली है। क्योंकि बट भारत का मेन तो एडवर्सरी चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान अब चेंज हो गया भारत का पर्सपेक्टिव। और चाइना का तो मच मोर फोर्टिफाइड है, बिकॉज चाइना के पास ये सारे वेपन्स है जो इंडिया के पास है, सारे सेम वेपन्स, ऑल रशियन ओरिजिन। उनके पास भी रशियन ओरिजिन है, तो भारत के पास भी है। तो यहाँ पे ओनली इन इन द चेस में नाउ ओनली स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स विल वर्क। तो इसमें भारतीय सेना कैसे ऑपरेट करेगी? इन केस ऑफ ए वॉर विथ चाइना, आपका ये सवाल है ना। तो चाइना के साथ अभी भी देखिए, अभी भी एक संघर्ष हमारा चल ही रहा है, विच इज फार फॉर, विच सीम फार फॉर फ्रॉम एंडिंग। इस खतरनाक विंटर में अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से एक, सॉरी, सोल्जर का मोटर रिमेन्स आए मेरे टाउन में, और एयरपोर्ट पे वी वेंट देयर टू पे आवर होमेजेस टू हिम। ही वाज 32 years old, and the soldier, he was a havaldar in the Indian army, in the 11 Grenadiers regiment. He died of heart attack. उसके जो साथी थे उन्होंने मुझे बताया कि he was on a forward post, और वहां पे they both were on duty at night.
उन्होंने साथ में खाना खाया, एंड वन ऑफ देम वाज ऑफ ड्यूटी, ही वेंट टू स्लीप, अपनी जीआरपी उसके अंदर हट के अंदर। और व्हाट हैपेंड वाज कि अगले दिन सुबह वो उठा और ही हैड सम डिस्कम्फर्ट इन हिज चेस्ट, सो उसके उसे प्राइमरीली कुछ मेडिकेशन दिया गया, बिकॉज पोस्ट फॉरवर्ड थी, आगे थी, काफी ऊपर थी, तो वहां पे मेडिकल असिस्टेंस तो नहीं रहता, बट उनके पास एक जनरल फर्स्ट एड किट रहती है। डॉक्टर से बात भी हुई फोन पे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इससे तुम्हें कंफर्म अगर ठीक हो लगता है तो फिर नीचे आने की, क्योंकि उस पोस्ट से नीचे उतरने के लिए भी यू हैव टू वॉक, और जब हार्ट में ही इतना डिस्कम्फर्ट चेस्ट में उसको हो रहा था तो ही कुडंट वॉक। सो इवेंचुअली ऐसा लगा कि वो अभी स्टेबलाइज हो गया है, और थोड़ा उसको चेस्ट पे पेन भी कम हुआ, जो इमरजेंसी में उसने जो मेडिसिन ली उसके बाद। तो ही टोल्ड हिज फ्रेंड की हिज कलीग कि मैं थोड़ा बाहर जाके हवा लेता हूँ। सुबह शायद 10 बजे की बात है, सन वॉज शाइनिंग, और वो बंदा बाहर गया और 5 ही मिनट में खड़े खड़े ही वहीं पे गिर गया, एंड ही कोलैप्स्ड, ही वी लॉस्ट हिम। सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो टेरेन है, जो वहां का जो हवामान है, वो इतना खतरनाक है कि युद्ध से ज्यादा सैनिक जो है उस टेरेन की वजह से, उस हवामान की वजह से, उस टेम्परेचर्स और वो चिली विंड्स, हम सोच नहीं सकते कि -20 डिग्री की हवाएं उस 15-18 हजार फीट की ऊंचाइयों पे इस तेजी से हवा चलती है कि आपके शरीर को ऐसा लगता है कि कोई तलवारें या छुरियां गोद रहा है आपके बॉडी में, इतनी ज्यादा विंड, चिली विंड्स वहां पे चलती है। ठंडा हो, मतलब आप भी कहते हैं कि अभी अमेरिका में आप जहाँ पे है वहां पे -20 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, तो ये सोचने वाली बात है कि उस -20 डिग्री में अगर 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, या से 45 माइल्स पर आवर की स्पीड से अगर विंड चलना शुरू हो जाए, चिली विंड्स, तो हाउ हाउ विल वन सस्टेन हिमसेल्फ। सो इन परिस्थितियों में चाइना और इंडिया, इन दोनों के सैनिक एक दूसरे के सामने डटे हुए हैं। अब बात करते हैं चाइना के साथ वॉर की, तो उसमें वी हैव टू टेक अ क्लू फ्रॉम 62 वॉर, इंडिया चाइना का जो 62 का जो वॉर हुआ था, उसमें चाइना किस तरह से पेश आया था, क्या क्या परिस्थितियां थी, और किस तरह समवॉट चाइना अपने आप को हमेशा ये बताता रहा कि इंडिया इज दी अग्रेसर। ये चाइना का बड़ा शातिर प्लॉय है, एक सीआर की तरह काम करता है चाइना। और उन्होंने इवन फॉरवर्ड पोस्ट पे भी वो लोग यही बताते रहे कि अरे आप लोग हमारे एरिया में आ गए हो, और पुराने पुराने मैप्स दिखाते थे। अभी भी चाइना वही कर रहा है, पुराने मैप्स पता नहीं कहाँ से लेके आता है और बोलता है कि ये अरुणाचल प्रदेश तो हमारा था, ये तो हमारा था। भाई तुम्हारा कुछ नहीं था, और चाइना भी तुम्हारा नहीं था, बट उनको मैं थोड़ा सा उस इंटरवीन उनके। करता हूँ। हम लोग चाइना को महाभारत का मैप दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं कि चीन हस्तिनापुर को कर देता था, महाभारत में लिखा हुआ है, वो तो लिखा ही हुआ है वहां पे, तो ये भी बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, हमें वही वही चीज आपके नहीं ही है। पॉइंट पे आ रहा था, बहुत वैलिड पॉइंट है कि हमें भी अपनी हिस्टोरिक टेक्स्ट को कोट करके उनको जवाब देना चाहिए। और मेरे ख्याल से इट इज हाई टाइम, शायद मैं आपसे भी इस मामले में रिक्वेस्ट करूंगा कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि एआई में आप स्क्रिप्चर्स डालो तो वो लोग कुछ फेस और चीजें रीजनरेट एआई के उससे कर रहे हैं। तो अगर हम महाभारत के समय का हस्तिनापुर राज्य का मैप को, हस्तिनापुर राज्य का जो वर्णन किया गया है, जहां तक पांडवों का राज्य गया था उस राजसू यज्ञ के बाद, इवन रामायण के समय में प्रभु श्री राम का जो 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 वर्णन हुआ है कि राम राज्य कहाँ तक था, अगर हम उस वर्णन को एक एआई में डालते हैं, अंग्रेजी में बना के, और उस एआई सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि अब तुम वर्ल्ड मैप में राम राज्य को दिखाओ, तो शायद तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मैप बनेगा जो कि चीन नहीं, बहुत सारे देशों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। बहुत सारे देशों का जो जो दावे हैं उनके, वो दावे धरे के धरे रह जाएंगे कि आज से भगवान कृष्ण के समय को शायद 5,000 वर्ष पहले, या उनसे पहले जो भगवान श्री राम का जो समय हो गया, उस समय में भारत कितना बड़ा था, कितना विशाल था। तो खास करके चीन जैसे देश को छकाने के लिए, और उनके ऐसे फर्जी जो दावे हैं उनको जवाब देने के लिए, मेरे ख्याल से हमें कुछ ऐसे सत्य मैप जो है वो बनाने चाहिए, और अगर जो बने हैं वो उनको पेश करने चाहिए। बट समवॉट चीन अपनी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और अपनी जो, ये मैं कहूँगा
द सो कॉल्ड नौटंकियां उसमें करता ही जाता है। और यही अपने अपने आप को खासकर विक्टिम कार्ड प्ले करना कि इंडिया इज दी अग्रेसर, वो उन्होंने 62 में भी किया था और इस बार भी कर रहे हैं। तो उसको फाइट करना बड़ा जरूरी है। चीन एक ही मोर्चे पे नहीं लड़ रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, एम्स, उसके सर्वर के ऊपर कहते ये एक उसके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है, और जो हैकर्स है दे आर आस्किंग फॉर 200 करोड़ रुपीज रैंसम। तो चाइना का जो वॉरफेयर है वो बहुत सारे फ्रंट्स पे है। हमारी जो ट्रेड डेफिसिट विद चाइना है वो आई थिंक $50 बिलियन की है, $51 बिलियन की, विच इज अगेन अ ह्यूज कंसर्न। हम एक तरफ तो दिखाने के लिए तो चाइना को बैन करने की बात होती है, बट चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट तो कई कतई कम नहीं हो रहा है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, खास करके बांग्लादेश हो चाहे नेपाल हो, जबकि बांग्लादेश की तो मुक्ति, बांग्लादेश की जो फ्रीडम है उसके उसमें भारत वासियों का, भारत के सैनिकों का लहू शामिल है। फिर भी आज चाइना बांग्लादेश में बहुत ज्यादा इंडोर्स कर चुका है। बांग्लादेश का शायद अभी बहुत करीबी दोस्त बन चुका है। भारत एक ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश को सबसे पहले एज ए नेशन, एज ए कंट्री मान्यता दी, और चीन ने ये यही मान्यता देने में 1-1.5 साल लगा दिया था। फिर भी 1973 या 74 में चीन ने बांग्लादेश को एज ए कंट्री मान्यता दी। तो इन परिस्थितियों में फिर भी हम कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि चीन जो है, चाहे समंदर हो जहाँ पे जिस तरह वो वैक्यूम फिशिंग करते हैं, चाहे अग्रेशन हो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, बॉर्डर्स पे, और सिंगो कॉल्स बना के हमारे हमें चारों ओर से जो घेरने की बात है। अफ्रीकन कंट्रीज में जिस तरह से उनकी हेजेमोनी बढ़ रही है, अफ्रीकन नेशंस में वो लोन शार्क की तरह एक करता है, लोन देता है और बाद में कंट्री की जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उन पे अपना कब्जा कर लेता है। तो ये सब चीजें कई सारे फ्रंट्स पे चल रही है। तो इन केस ऑफ अ वॉर विथ चाइना, मैं कहूंगा वी आर ऑलरेडी एट वॉर विथ चाइना, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट सस्टेनिंग वॉर इंडिया के लिए। इस युद्ध को न केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे या केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा। ये युद्ध तो लड़ा जा रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे, ये युद्ध तो लड़ा जा रहा है स्पेस के फ्रंट पे, ये युद्ध लड़ा जा रहा है भुखमरी से लड़ने के फ्रंट में, ये युद्ध लड़ा जा रहा है अपनी दोस्ती को निभाने के फ्रंट पे। हर जगह चीन जो है अपनी कहीं ना कहीं अपनी चोंच डाल रहा है और भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। बट कहते हैं ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, दुश्मन रहा हो चाहे एरो जमाना हमारा। तो कितने भी बड़े दुश्मन आ जाए, भारत जो है अपने अपने विचारों से और अपनी अपनी इकोनॉमी से हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और न केवल चीन, बट अभी की परिस्थिति में तो जैसे आप हमेशा कहते आए हैं कि अमेरिका अमेरिका भी की जो एक्टिविटीज है वो हमसे कम फ्रेंडली और चाइना से ज्यादा फ्रेंडली हो रही है। तो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। तो ऐसा इन परिस्थितियों में भारत अपने आप को कहीं ना कहीं विश्व में बिल्कुल अकेला तो नहीं कहूंगा, बट फिर भी अकेला पाता है। और इसमें लड़ने का जज्बा हम में जरूर है। हम लड़ेंगे। और शायद अगर युद्ध की ही बात की जाए तो जिस तरह हमारे कमांडर साहब ने कहा था कि युद्ध की परिस्थिति के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। एडवर्सरीज की जो ताकत है उसका आकलन ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, जिस तरह उन्होंने हमारी ताकत का आकलन किया है। और अगर युद्ध होता है, अगर ऑल आउट युद्ध होता है, जो कि यूजुअली नॉर्मली दो न्यूक्लियर आर्म नेशंस के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होती है जरूर, बट युद्ध अभी तक जब से आणविक शस्त्र आए देखा नहीं गया है कि ऐसे दो देश, या अभी की परिस्थिति में ऐसे 3 देश जिनके पास आणविक शस्त्र हो और ऑल आउट युद्ध लड़े। कारगिल को मैं युद्ध नहीं एक कन्फ्लिक्ट कहूंगा। तो इन परिस्थितियों में चाइना के साथ अगर युद्ध होता भी है तो भारत मेरे ख्याल से उसके लिए तैयार है। और चाइना विल हैव अ ब्लडी नोज व्हेन इफ दे गो फॉर वॉर विथ अस। दैट इज ट्रू, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स के बारे में पूरी दुनिया में माना जाता है कि इंडियन सोल्जर्स वर द सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 they were one of the finest ones, even better than any of the British soldiers also.
So they are known for tactics and strategy on the field. जेरूसलम पे इंडियन सोल्जर्स का विक्ट्री, हाइफा में इंडियन सोल्जर्स का मार्क World War II. The Turkey with so much pride, Ottoman Empire, was defeated by the Indian soldiers fighting for the British in 1914 and 1915. And France में in World War I में Indian soldiers were the ones who defeated the Germans in France, liberated France. So French तो अभी राफेल बेचते हैं, पर ये भी याद होना चाहिए 1900 अगर नहीं बेच पाते अगर आज जर्मन टेरिटरी होता है, then that is all credit goes to the Indian soldiers. So no doubt about it. And I was in Indian Gateway of India in sorry India Gate. Gateway of India is in Bombay. India Gate में था मैं दिल्ली में, और मैंने inscriptions देखे वहां पे. It is all tribute to the Indian soldiers. No doubt about it. World has changed, लेकिन अभी world बदल गया है. अभी यहाँ पर the country which is defensive, even though traditional military says a defensive army is always in a stronger position. तो जो इंडिया के जो बॉर्डर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्दर्न बॉर्डर को देखें और वेस्टर्न, तो मेरा एक छोटा सा आंसर इसमें बताइए मुझे कि 1987 में 19 जो भी वॉर हुआ 62 के बाद, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वर बेटर देन एनीथिंग चाइनीज कुड फेस. चाइनीज ने स्ट्रेट फाइट में किसी के साथ भी लड़ा नहीं अभी आज तक. वियतनाम में लड़ा था तो 3 लाख सोल्जर्स उसके मार के भगा दिए थे वियतनाम में. सो in the border conflict nowadays, the mass destruction is what people are going to attempt. और इंडिया के पास भी बहुत सारे weapon systems हैं जो कि like Indian forces are the world's third largest or second largest forces right now. Second, China के बाद India, then USA in terms of numbers of manpower. लेकिन अभी जो बात चलती है कभी कभी कि numbers को reduce करना है, और अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया हैज फोर्स्ड टू इंक्रीज द नंबर्स एंड उनका रिक्रूटमेंट चल रहा है. एंड देन सो इट ऑल द old solutions, new problems. You cannot have an armed forces so small. जैसे अभी अमेरिका का फाइटिंग फोर्सेस के बारे में बोलते हैं 1.5 लाख से ज्यादा नहीं है. दे कैनॉट फाइट 1.5 लाख से ज्यादा, बाकी सब सपोर्ट है. इंडिया में भी ऐसा ही है. 40% फोर्स विल बी फाइटिंग, 60% इज सपोर्ट, जो कि विल बी सपोर्टिंग द 40% फाइटिंग. लेकिन इंडिया के जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न जो नेबर्स है इंडिया के, जिनको वेस्ट ने ही बड़ा किया है टू कट डाउन इंडिया, तो आई डोंट नो हु इज अ फ्रेंड एंड हु इज एन एनिमी राइट नाउ. जैसे उन्होंने बोला था, हेनरी किसिंजर ने बोला था कि अमेरिका का दोस्त होना तो मतलब अमेरिका का दुश्मन होना तो घातक है ही, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना तो एक तरीके का सुइसाइड हो गया. तो इस परिप्रेक्ष्य में कैसे बोलेंगे, और उस पर हम लोग विल स्टॉप द डिस्कशन. ये इस परिप्रेक्ष्य में मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि 1962 के युद्ध को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. मैंने 1962 के युद्ध के ऊपर काफी पढ़ा है और उसे समझने की कोशिश की है. मैं बताऊं कि सबसे पहले नेफा में, नामकाचू में पाकिस्तान चाइना ने हमला किया, और जिस तरह से राजपूत वहां लड़े, जिस तरह से जाट वहां लड़े, जिस तरह से जो फाइट बैक दिया गया, जो खासकर 2 राजपूत के जो बंगाली थे वो बड़ा तगड़ा लड़े, और जिस तरह चाइना को ब्लडी नोज दिया. उस नामकाचू रिवर के किनारे पे जब इन विकट परिस्थितियों में, इस विंटर के टेम्परेचर में, जब टेम्परेचर और चिली विंड्स चल रहे थे, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, इन परिस्थितियों में सादे कैनवास शूज में और नॉर्मल यूनिफॉर्म, जो कि हाई एल्टीट्यूड के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि आपको एक तो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए आपको ऊनी यूनिफॉर्म चाहिए, प्लस उस हवा से बचने के लिए आपके यूनिफॉर्म में लेयर्स, ऐसे प्लास्टिक लेयर्स होने चाहिए, या फिर चमड़े का यूनिफॉर्म हो जो कि आपको उस हवा से बचाएगा. तो ना ही हमारे पास यूनिफॉर्म्स थे, ना ही हमारे पास विंटर के लिए शूज थे. ये परिस्थिति तो कारगिल के समय भी थी. हमारे पास लड़ने के लिए, ऊपर चढ़ के दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे पास जूते नहीं होते थे. तो और इमरजेंसी में यूनिफॉर्म्स प्रोक्योर किए गए. यही दूसरा, चाइना के पास ऑटोमेटिक ब्रेन गन्स थी, हमारे पास .303 राइफल्स थी. सो 1962 के पूरे युद्ध में कहीं भी
सोल्जरिंग को क्वेश्चन नहीं किया गया है, कभी ये नहीं कहा गया कि जो हमारे जो सैनिक थे वो कहीं ना कहीं कहीं कमजोर पड़ी हमारी सत्ता, हमारी लीडरशिप, हमारी टॉप लीडरशिप, जिन्होंने हम पे विश्वास नहीं दिखाया, हमें वेपन्स नहीं दिए और कहीं ना कहीं अहिंसा के चक्कर में अपनी सेना को कमजोर होने दिया। आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि चीन को प्रधानमंत्री के कार्यालय से मैसेज आ रहा है, कौल साहब को, कि आप चीन को खदेड़ के निकाल दो, और दूसरी तरफ वेपन्स नहीं दे रहे हैं, आप उनको सही से प्रिपरेशन करने का समय नहीं दे रहे हैं। 71 का युद्ध और 62 का युद्ध, यही तो फर्क था कि 71 तक भारत ये समझ चुका था कि वेपन्स कितने जरूरी है, ट्रेनिंग कितनी जरूरी है, सैनिकों को वेल फेड रखना, उनको अच्छे कपड़े देना, उनको फाइट के लिए इक्विपमेंट्स देना, वेपन्स देना, ये कितना जरूरी है। यही सब चीजें हमारे पास नहीं थी। और आत्मनिर्भर तो हम तब भी नहीं थे, अभी भी कहीं ना कहीं हम होने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाके सरकार ने कुछ समय से अपना पूरा फोकस आत्मनिर्भरता, खासकर मिलिट्री में आत्मनिर्भरता के ऊपर दिया है। तो उन परिस्थितियों में .303 राइफल से जो जिसको कि बार बार हर बार अलग फिर से लोड करना पड़ता था, लोग लड़े हैं, अपनी जानें दी है, इतने लोग पकड़े भी गए थे। लड़ते लड़ते आपने बंदूक की आखिरी गोली जब तक उनकी खत्म नहीं हुई तब तक लोग लड़े थे। तो इन परिस्थितियों में 62 का युद्ध का मैं ये पक्का कहूंगा कि अगर हमारी जो सोल्जरिंग है, हमारा जो सैनिक है, एक आम सैनिक हो चाहे एक फ्रंट पे लड़ रहा अधिकारी हो, उनको अगर बेटर इक्विप्ड किया गया होता तो आज शायद 62 का युद्ध भी हम हारे नहीं होते। तो ये तो पक्का है कि चीन ये तो जरूर जानता है। अभी जब चीन ने लोहे के स्पाइक्स से हमारे जवानों के ऊपर हमला किया, तो मेरे ख्याल से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख हुआ कि अगर हमें पता होता, क्यों हमारा इंटेलिजेंस, अगर ग्राउंड इंटेलिजेंस तो चलिए दुश्मन के खेमे में हमारा नहीं हो, ये मान के चल रहा हूं, तो सैटेलाइट इंटेलिजेंस से या किसी तरह से हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आती कि हमारे जो दुश्मन है उस वो लोहे के स्पाइक्स और लोहे के रोड्स जिसमें कांटे लगे हैं वो लेके हमारे ऊपर, वो अपने आप को सज्ज किए हुए छुपा के रखा है। हमारे यहाँ मुझे याद है, मेरा जन्म तो लेट 70s में हुआ, तो 84 का दंगा मुझे बहुत याद है कि लोगों ने कुछ एक धर्म, कुछ खास धर्म के लोगों के घरों में तलवारें और पेट्रोल बॉम्ब्स और बहुत सारी चीजें रहती थी। इस बार हमने दिल्ली दंगे में भी देखा, दिल्ली दंगा 2020 पुस्तक बड़ी पढ़ने लायक है, उसमें काफी सारी चीजें पता चलती है। तो जब आपको पता है कि जो एडवर्सरी है वो अपने पास ऐसे मैं कहूंगा ऐसे वेपन्स, इन्हें इन्हें नॉन नॉन रेगुलर वेपन्स छुपा के रखा हुआ है, लोग तलवारें बस कुछ एक कहूंगा कि उन लोगों ने तलवारें और ये सब चीजें अपने बेड्स के नीचे और जहां बर्तन रखते हैं उन उन अभराई जिसको कहते हैं उसके ऊपर छुपा के रखी थी। और जब दंगे हुए तो कई सारे निर्दोष हिंदुओं के ऊपर उनको कईयों को मार दिया गया। तो इन परिस्थितियों में अगर हमारे सैनिकों को पता था, पता होना चाहिए था, पता था, पता नहीं था, बट ऑब्वियस है, ताकि और जो जिस तरह से नरसंहार हुआ, जिस तरह से हमारे 20 सैनिक लड़े और उनके 40 से अधिक सैनिक को मार गिराया, बट उस लड़ाई के समय सबसे दुख की बात यही है कि हमें प्रायर पता नहीं था। हमें हमें ये हमेशा पता होना चाहिए कि हम दुश्मन से एक कदम आगे तभी रह पाएंगे जब हमारा इंटेलिजेंस जो है वो क्रेडिबल रहेगा, जब हमारा एक ग्राउंड इंटेलिजेंस जिसे कोई बीट नहीं कर सकता, दूसरा हमारे पास सैटेलाइट इंटेलिजेंस क्यों नहीं था कि चाइनीज के पास समवॉट ऐसे वेपन्स हैं। आई डोंट नो उन पहाड़ों में, पर्वतों में वो पॉसिबल है कि नहीं, बट कुछ तो होना चाहिए। हम कहीं कमजोर कहाँ पड़ रहे हैं ये हमारे जो सुपीरियर्स हैं उन्होंने देखा ही होगा, और आगे मुझे नहीं लगता कि ऐसा ऐसा हमला अगली बार चीनी कर पाएंगे। तो ये तो पक्का है कि भारत वो पुराना भारत रहा नहीं है, और हमेशा से दुश्मन से लड़ने के समय सैनिकों ने अपना 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 सब कुछ दिया है, और कभी ये नहीं सोचा कि मैं अगर जिंदा नहीं पहुंचूंगा तो क्या होगा। हर सैनिक जब युद्ध के मोर्चे पे गया है तो सर पे कफन बांध के ही गया है, काला कफन बांध के, और अपना सब कुछ अंतिम सांस तक और अंतिम गोली तक लड़के दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त करने की मंशा से ही हमेशा लड़ा है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस सारे विषयों पे बात रखने के लिए खुलकर। और बाकी व्यूअर्स के लिए इस डिस्कशन को सुनिए, ध्यान से सुनिए पूरा डिस्कशन। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने पूछे हैं जो सबके आप सबके मन में थे। और मेरे पास मनन भट्ट ही है जो इस विषय में बात करते हैं हमारे चैनल पे, इंडियन डिफेंस के ऊपर। तो पेटी ऑफिसर मनन भट्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद। एंड थैंक यू फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस शो। आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए दोनों को, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे शोज को देख सकें। आप लाइक करेंगे तो ज्यादा के ज्यादा व्यूअर्स इसको देख सकते हैं। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।